Hello friends, welcome to TechCube Gate classes. My name is Professor Vivek Singh Rathore and I am Assistant Professor in Government Engineering College Bilaspur, Chhattisgarh. And in this video lecture series, I am dealing with signals and system subject, in which we are in the module 4, that is Fourier transform for aperiodic signal, and it will be the last lecture for this module. Today we will try to complete our Fourier transform, and then from next lecture we will move on to the more generalized transform like Laplace transform and Z transforms. So in the last lecture we have deal with distortionless transmission, low pass filter and 3 dB bandwidth. Okay, so let's move on, and we'll see what is energy spectral density and how we can correlate the signal, that is correlation of energy signals and power signals. So let's move on with our topic today. So we'll see today topic, that is in the last lecture I have dealt with 3 dB bandwidth na. So we can also talk about energy bandwidth of the signal. Okay, so energy bandwidth of signal. Okay, so what is energy bandwidth? Means those group of frequency which are having appropriate or required energy, that group of frequency are called as energy bandwidth of the signal. Like see, if you have remembered, in the last lecture I have given you a task to solve a question. I have told you to solve one question, that is e to the power, this signal is there, e to the power minus at u of t. This signal I have told you to calculate its 3 dB bandwidth. Okay, so 3 dB bandwidth, if you have calculated, it's good. Otherwise I am telling you now. See, 3 dB bandwidth means, first of all, we need to check bandwidth means it is in frequency domain, and this signal is in time domain, so we need to convert it in frequency domain. So for Fourier transform, we need to take, what is the Fourier transform for this signal? This is 1 by a plus j omega. This is the frequency transform. But see, what is the mod value if you take like, see, as you know that f of omega of cutoff frequency, this is equal to whatever the magnitude will be there. 1 by a plus j omega can be plotted like this. Okay, this can be plotted if you plot it by taking a omega ki value different, you can get this output. This is in frequency domains. Okay, so what will be the bandwidth of this signal? Okay, I am asking actually, what will be the bandwidth of the signal, this signal, where we can take 50% of energy, where we can take 50% of energy. So what will be the bandwidth of the signal? That is, so whatever the group of frequency which is considering the appropriate amount of energy which is required, that is called energy bandwidth of the signal. So in Hindi, if you can understand, ये एक सिग्नल दिया हुआ है, इसका हमको ये देखना है कि कौन से ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसी में 50% एनर्जी रहती है, उतना ही बस हमको निकालना है। उसी ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम बैंडविड्थ कह रहे हैं, एनर्जी बैंडविड्थ। तो देन व्हाट वी हैव डन, वी हैव टेकन फोरियर ट्रांसफॉर्म, दिस वैल्यू इज देयर एज यू नो कि ये जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस सिग्नल एफ ऑफ, अगर ये एफ ऑफ टी है तो दिस इज एफ ऑफ ओमेगा, है ना, दिस इज एफ ऑफ ओमेगा। सो एफ ऑफ ओमेगा सी, एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये कितना होगा? अगर आप 3 dB लेते हैं तो ऑब्वियसली आप 1 बाय रूट टू ऑफ एफ ऑफ ओमेगा का मैक्सिमम वैल्यू का 1 बाय रूट टू लेते हैं। अगर 3 dB लेना होगा तो तब की बात ये है ना, 3 dB के लिए कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ये है। और अगर आप यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर 3 dB आपका बैंडविड्थ है ना, 3 dB बैंडविड्थ के लिए ये है, मतलब 3 dB वैल्यू निकालनी है। तो अगर, लेकिन अभी हम लोगों को निकालना क्या है? 50% ऑफ एनर्जी। एनर्जी के लिए देखिए, यू नो कि एनर्जी आपका, एनर्जी की वैल्यू होती है माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एफ ऑफ स्क्वायर टी dt. From this formula we generally calculate energy. और इसी का दूसरा फॉर्मूला क्या है? जब हम पार्सेवल्स रिलेशन, वी हैव सीन पार्सेवल रिलेशन, सो एनर्जी कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड बाय 1 by 2 pi minus infinite to infinite f of omega square d omega.
energy can also be calculated from frequency domain by calculating f of omega mod square d omega 1 by 2 pi. Okay, so this is actually this portion is actually called as, this portion only is called as ESD, energy spectral density. Okay, this is actually energy per unit per frequency. This is, that's why it is called as energy spectral density. Okay, so overall energy, if you can calculate from here, you can calculate minus infinite to infinite e to the power minus at u of t square dt है ना. So here we will get as 0 to infinite e to the power minus 2at dt, and here will be 1 by 2a will be there. Okay, 1 by minus 2a will be there, e to the power minus infinite minus e to the power 0. So this value will come as 1 by 2a. Okay, 1 by 2a joule. So ultimately total energy for this type of signal e to the power minus at will be 1 by 2a. मतलब e to the power minus at ut का total energy कितना है, 1 by 2a. लेकिन हमको क्या चाहिए, we want those group of frequency which is containing 50% of the energy, जो सिर्फ 50% of energy को contain कर रही है. तो क्यों ना अभी this formula is for, ये जो आपका formula है, this formula is for calculating bandwidth. So क्यों ना हम इसको रख देते हैं 1 by 2 pi रखें. ओके, आप माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तो अब नहीं रख सकते, हमको कोई ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो हम लिख सकते हैं माइनस ओमेगा 1 से ओमेगा 1, लेट सपोज माइनस से प्लस ओमेगा 1 मॉड ऑफ एफ ओमेगा का होल स्क्वायर, आप इसको रख सकते हैं डी ओमेगा. ये भी एक एनर्जी है, और ये एनर्जी को आप किससे इक्वेट कर सकते हैं, इससे 50% ऑफ टोटल एनर्जी. टोटल एनर्जी कितनी है, 1 बाय 2 है ना. तो इससे आप इक्वेट किया जा सकता है. इससे इक्वेट करेंगे तो आपको देखिए आंसर कैसे आएगा. 2 तो कैंसिल हो गया यहाँ पे है ना, 52 यहाँ पे है. तो हम इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे हम इसको लेके चले जाते हैं. ओके, हम इसको लेके चले जाते हैं, जैसे 1 बाय पाई को इधर ले गए, माइनस ओमेगा 1 से ओमेगा 1. एफ ऑफ ओमेगा क्या है, व्हाट इज एफ ऑफ ओमेगा, एफ ऑफ ओमेगा इज नथिंग बट 1 बाय 1 प्लस ए प्लस जे ओमेगा. ये एफ, और मॉड क्या होगा इसका, इसका मॉड होगा 1 बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, और उसका आपको स्क्वायर लेना है. तो मॉड ऑफ एफ ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 बाय ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर टोटल, है ना. क्योंकि एफ ऑफ ओमेगा क्या था, वो था ए प्लस जे ओमेगा, यही था. क्योंकि एफ ऑफ टी क्या था, एफ ऑफ टी था ई टू द पावर माइनस ए टी यू ऑफ टी. तो उसका एफ ऑफ ओमेगा निकाले, एफ ऑफ ओमेगा स्क्वायर निकाले, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 बाय ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा. और यहाँ पे हम लिख सकते हैं पाई आ गया नीचे 2a, पाई बाय 2a, है ना. ये हो गया अपना ये. अब हम क्या करते हैं, आई थिंक, हाँ ओके फाइन. अब यहाँ पे a को कॉमन लिया जा सकता है, a को बाहर निकाला जा सकता है, एंड वी कैन गेट 1 बाय a यहाँ पे बाहर. okay, let it be, don't take it. We'll take here minus omega 1 to omega 1 by a square. अच्छा, इसको हम सॉल्व ही कर लेते हैं. बेटर, इट्स बेटर टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, यहीं से हम सॉल्व कर लेते हैं. सी, ये हो जाएगा आपका 10 इनवर्स ऑफ ओमेगा बाय ए, है ना. और यहाँ पे आ जाएगा 1 बाय ए. ओके, और ये आपका आ जाएगा माइनस ओमेगा 1 से ओमेगा 1, एंड दिस विल बी इक्वल टू, ये आपका है, ठीक है. और यहाँ पे आ गया पाई बाय 2a. ए कैंसिल हो जाएगा अपने आप, है ना. उसके बाद आंसर यहाँ पे आप यहाँ पे लिख देते हैं आंसर 10 इनवर्स ऑफ ओमेगा 1 बाय ए, और यहाँ पे माइनस ऑफ 10 इनवर्स ऑफ ओमेगा, तो यहाँ पे 2 10 इनवर्स ऑफ ओमेगा 1 बाय ए आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा पाई बाय 2, ठीक है. उसको हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. 10 इनवर्स ऑफ ओमेगा 1 बाय ए को पाई बाय 4 कर सकते हैं, क्योंकि ये 2 इधर चला गया. एंड देन ओमेगा 1 बाय ए विल बी 10 पाई बाय 4, दैट इज इक्वल टू 1, एंड देयरफॉर ओमेगा 1 इज इक्वल टू ए रेडियन पर सेकेंड. सो देखिए अल्टीमेटली ये आया इस क्वेश्चन का. हमको वी नीड टू अंडरस्टैंड द कंक्लूजन ऑफ दिस क्वेश्चन, कि
इफ यू हैव बीन गिवन इफ एफ टी इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एट यू टी, या कोई भी आपको ऐसा सिग्नल दिया जाता है और आपको बोलते हैं कि आप ना उन फ्रीक्वेंसी को पकड़िए जो 50% एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपको पहले उसका क्या निकालना पड़ेगा, 50% एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी तो आपको पता होना चाहिए, तभी तो 50% निकालेंगे। यू नीड टू अंडरस्टैंड इट एंड देन व्हाट यू नीड टू डू, टेक फोरियर ट्रांसफॉर्म फॉर योर सिग्नल, इट विल कम इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। नाउ फ्रीक्वेंसी डोमेन का पार्शियल रिलेशन से आप उसका एनर्जी को इक्वेट कर सकते हैं और उसके बाद आंसर आ सकता है। तो देखिए अगर आप देखें तो ये है आपका ये आपका 50% एनर्जी है लेकिन अगर मैं आपको एक होमवर्क भी दिया था कि आप इसका 3 dB बैंडविड्थ निकालिएगा, 3 dB बैंडविड्थ आप निकालते हैं तो भी आपको आंसर लगभग ऐसा ही मिलता है। तो 3 dB बैंडविड्थ ऑफ अ सिग्नल इज सेम एज 50% एनर्जी बैंडविड्थ ऑफ अ सिग्नल। ये आपको कंक्लूजन है इस क्वेश्चन से, है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट उसमें लेके चलते हैं। अब आपको मैं थोड़ा सा वापस LTI सिस्टम्स की तरफ लेके आता हूँ और आपको बताता हूँ कि जैसे देखिए see, we are giving input to a LTI system and let's suppose we are getting output. Let your input is nothing but x of t is input and you are getting output as y of t, और आपका बीच में एक LTI सिस्टम है, जानते हैं आप LTI सिस्टम, और LTI सिस्टम का क्या इम्पल्स रिस्पॉन्स होता है, इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स होता है h of t, दिस इज h of t. Now what we always get that if we want output or response of our LTI system, मतलब हमको y of t चाहिए, तो हमको क्या करना होगा, x of t का कॉन्वोल्यूशन करना होगा h of t के साथ, यही हमको पता है। और अगर हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखें, y of ओमेगा इज इक्वल टू x of ओमेगा multiplied by h of omega, this is your convolution property, this you know। अच्छी बात है। अब हमको अगर ये पता है कि देखिए इसका एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी, जैसे हम इसका बोलें, देखिए यहाँ पे तो एक सिग्नल ही है ना, मान लीजिए x ऑफ t कोई सिग्नल है, ठीक है, तो कोई सिग्नल आ रहा है, y ऑफ t में भी कुछ आउटपुट आएगा, तो कुछ ना कुछ तो एनर्जी होगा। तो लेट सपोज कि यहाँ पे जो सिग्नल है आपका x ऑफ t पे, उसकी एनर्जी e ऑफ x है। लेट सपोज जो आउटपुट में आपका सिग्नल आ रहा है उसको आप लेट सपोज y ई ऑफ y आप मान लीजिए, जो आउटपुट में एनर्जी है उसका इनपुट वो ई ऑफ y विल कंसिडर इट एंड इनपुट एनर्जी इज ई ऑफ x, है ना। ठीक है, अब हम लोग इसी का स्पेक्ट्रल डेंसिटी भी होगा पर एनर्जी पर फ्रीक्वेंसी, तो उसको हम लोग ले लेंगे ई एस डी ऑफ x, है ना, और यहाँ पे हम लोग ले लेंगे ई एस डी ऑफ y, ये हो जाएगा। ओके फाइन। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए एनर्जी E ऑफ x अगर हमको निकालना है, एनर्जी ऑफ E ऑफ x, तो आपको पता है कि एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या है फ्रीक्वेंसी डोमेन में, 1/2 माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, आप क्या करिए x ऑफ ओमेगा का स्क्वायर ले लीजिए डी ओमेगा। दिस इज पार्सेवल रिलेशन, ये पार्सेवल रिलेशन है जिसमें बोला जाता है कि एनर्जी निकालने का ये फॉर्मूला, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ई एस डी ऑफ x, है ना, डी ओमेगा, ये भी आप लिखा जा सकता है, ये भी होता है ना। ओके, सेम चीज अगर आप y एनर्जी ऑफ y का देखें तो y भी ऐसे ही होता है, 1/2 आप ले लीजिए माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट ले लीजिए, आप ले लीजिए y ऑफ ओमेगा, ठीक है, स्क्वायर डी ओमेगा, यही होता है। और इसमें हम क्या ले सकते हैं, e 1/2 माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ई एस डी ऑफ y डी ओमेगा। ठीक है, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट सीइंग LTI सिस्टम, एनालाइज कर रहे हैं हम कि हो क्या रहा है। अगर हम एनर्जी की बात करें तो x जो हम सिग्नल भेजे हैं उसकी अपनी एनर्जी होगी, दैट इज E ऑफ x, देयर शुड बी एनर्जी ऑफ y आल्सो, सो E ऑफ y, एनर्जी पर यूनिट फ्रीक्वेंसी भी होगी, पर फ्रीक्वेंसी, तो आप ये उसको ESD बोलते हैं, एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी, और इसको बोलते हैं एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी y का, ठीक है। तो देखिए जो कि आपको पता है कि y ऑफ ओमेगा कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी से y ऑफ ओमेगा इज नथिंग बट x ऑफ ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय h ऑफ ओमेगा, ये आपको पता है। तो आपको ये भी पता है कि इन दोनों का जब मैग्नीट्यूड रिस्पांस लेते हैं आउटपुट का, तो ऑब्वियसली इन दोनों का मैग्नीट्यूड रिस्पांस क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, आपको ये पता होगा। और कभी अगर हमको इसको फेस का लेना होगा y ऑफ ओमेगा, तो आपको ये पता होगा कि x ऑफ आपका जो फेस है, फेस ऑफ x ऑफ ओमेगा प्लस फेस ऑफ h ऑफ ओमेगा
gets added up to form face of y ओमेगा, ये आपको पता है। तो आपको ये भी पता होगा कि जब हम इसका स्क्वायर कर दें तो दोनों साइड हम इसको स्क्वायर कर सकते हैं, तो y ऑफ ओमेगा का स्क्वायर, मॉड ऑफ y ऑफ ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ x ऑफ ओमेगा का स्क्वायर इनटू मॉड ऑफ h ऑफ ओमेगा का स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हैं, इसको आप सिंपल लिख सकते हैं ई एस डी ऑफ y इज इक्वल टू ई एस डी ऑफ x इंटू एच ऑफ ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, एच ऑफ ओमेगा का स्क्वायर। दिस रिलेशन आई वांटेड टू टेल यू कि अगर आपको कभी इफ यू हैव बीन गिवन इन क्वेश्चन कि अगर आपको एच ऑफ टी दे दिया तो आप एच ऑफ ओमेगा निकाल सकते हो, उसका मॉड निकाल के स्क्वायर कर सकते हो। आपको कभी बोल दिया है कि एनर्जी ऑफ एक्स आपको पता चल गया है, तो आप एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी निकाल सकते हो, और फिर आपको आउटपुट का, इफ यू वांट टू कैलकुलेट आउटपुट ईएसडी और आउटपुट एनर्जी आपको निकालना है, तो आप इस फॉर्मूले से आराम से निकाला जा सकता है ना, सिंपल सा है। और अगर आपको टोटल आउट एनर्जी निकालना है तो आप क्या करना पड़ेगा, ई वाई करना होगा 1/2 पाई माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ये जो ई एस डी आया है ई एस डी वाई डी ओमेगा, ये हो गया। तो what I was telling you to calculate how to calculate energy of output, ESD of output, by having the values of ESD of input and mod of h of omega square. So let's do a question regarding this topic. So we'll get more understanding from this question. So a signal is there which has been given input to a system and we get a output. Okay, let's suppose you have given input as e to the power minus t u of t. This is your input to a signal, and this system is having bandwidth of 1 radian per second. Okay, let's suppose the system is having bandwidth of 1 radian per second, and what you need to calculate, this is your ideal low pass filter and you have bandwidth of 1 radian per second, and now you need to calculate energy of response, means energy of output you need to calculate, that is E of y you need to calculate. Okay, so now from this question how you will proceed, you need to calculate energy. Okay, so the solution will start from energy of output. Energy of output means energy of output means 1/2 pi minus infinite to infinite e s d of y d omega. This is the e of y. This is only you need to calculate. Now you what you need ESD of y. ESD of y is nothing but your y of omega, whatever may be the y of t will be there. So this is the ESD of output. Now you also know that ESD of y can be also calculated as ESD of x into x of h of omega square. This also you know. Now see, ESD of x, can you calculate ESD of x? This one value you can calculate. See, as you know that x of t is nothing but e to the power minus t u of t. Okay, so if you take frequency domain Fourier transform, you will get 1/1 plus j of omega. And okay, and now ESD of x will be equal to nothing but x of omega ka square. So mod of x omega, what will be there? Mod of x omega square will be nothing but 1 plus omega square. This is your ESD of x. ESD of x matlab this is we have calculated. Okay, this we have done. Now अब हम what we can do is now what we need to do, see, this is your signal. Actually this was your signal. If you take this is your signal e to the power minus t u of t, है ना? And if you take Fourier transform for this signal, Fourier transform, what you will get? You will get 1/1 plus j omega. You will get like this type of signal. Okay, this is your signal in frequency domain. Okay, now what you have done, you have given this
input to a low pass filter low pass if you take low pass filter response, what you will get, low pass filter is having bandwidth of from -1 to 1, -1 to 1 radian per second it is having bandwidth. Okay, so whenever what you will do, whenever you will do, y of t will be equal to x of t convolution with h of t, or you can say x of omega into h of omega. So see, this is your x of omega, this is your h of omega. So can you multiply both signal to get y of omega? So ultimately if you take out y of omega, what you will get, y of omega will be, see, this signal will go on, go on, go on, but if it is multiplied by this signal, it will stay up till here only, means up till here, till -1, till -1 will be there, and then this value will be this value will stay here only. So this value will stay from -1 to 1. This is your y of omega, this is your y of omega. Now see, what we need to calculate, we need to calculate energy at output, है ना? तो energy at output E of y is nothing but, E of y is nothing but 1 by 2 pi minus infinite to infinite we will not take, because this value is existing from -1 to 1, so we'll take -1 to 1, mod of x, mod of this y of omega will take, okay, mod of y of omega will take, mod of y omega, and see, y of omega, uh, mod of y of omega will nothing but, see, as you know that here what you are taking, mod of y of omega square will be nothing but mod of x of omega square into mod of h of omega square, this you already know. तो भैया मॉड ऑफ एक्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर तो हमने निकाल रखा है, मॉड ऑफ एच ओमेगा, देखिए एच ओमेगा क्या है, ये है, इसका मॉड क्या है, 1 वैल्यू है, तो 1 वैल्यू तो है ही, तो उसका तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो मॉड ऑफ वाई ओमेगा स्क्वायर इज नथिंग बट मॉड ऑफ एक्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लोग मॉड ऑफ वाई ऑफ ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं 1 बाय 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, है ना, डी ऑफ ओमेगा। एक्चुअली ये ई ऑफ वाई है जो वी व्हाट वी वांट टू एक्चुअली कैलकुलेट। तो अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, 1 बाय 2 पाई कर लेते हैं, और इसको हम लोग लिख लेते हैं टेन इनवर्स ऑफ ओमेगा, है ना, और इसको लिख लेते हैं -1 से 1। सो फाइनल 1 बाय 2 पाई आ जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ 1 और वो करके अपन 2 इंटू टेन इनवर्स 1 ले लेते हैं, ठीक है, 2 इंटू टेन इनवर्स ऑफ 1, ओके, और ये हो जाएगा 1 बाय 2 कटा 1 बाय पाई इंटू टेन इनवर्स 1 कितना होता है, पाई बाय 4, है ना, तो आंसर आ जाएगा 1 बाय 4 जूल। Okay, so what energy we are getting at output is very easy to calculate, just आपको you don't have to do much complicated thing, आपको सिंपल सा E of y चाहिए, तो E of y का एक फॉर्मूला होता है 1 बाय 2 पाई ई एस टी वाई डी ओमेगा, ई एस डी मतलब होता है मॉड ऑफ वाई ओमेगा स्क्वायर। अब मॉड ऑफ वाई ओमेगा स्क्वायर को आप इससे भी निकाल सकते हैं, मॉड ऑफ एक्स ओमेगा स्क्वायर इंटू एच मॉड एच ऑफ ओमेगा स्क्वायर। आपको मॉड ऑफ एच ओमेगा स्क्वायर अगर आपको पता है तो वो वैल्यू आप डाल दीजिए, एक्स ऑफ ओमेगा का एक्स ऑफ टी दिया रहता है तो एक्स ऑफ ओमेगा निकाल के मॉड निकाल के स्क्वायर कर दीजिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और उसके बाद आप एनर्जी निकाल दीजिए। देखिए इससे एक और चीज हमको कंक्लूजन मिलता है कि E of y what we got now is 1 by 4 जूल, है ना। तो अल्टीमेटली अगर हमको क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक e टू द पावर माइनस टी यू टी इनपुट दिए हैं, वी हैव गिवन e टू द पावर माइनस टी यू टी एज अ इनपुट टू अ लो पास फिल्टर, एंड व्हाट आउटपुट एनर्जी वी आर गेटिंग 1 by 4 जूल। तो आप एक बार इनपुट एनर्जी भी कैलकुलेट करके देखिए, इनपुट एनर्जी अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे ना ई एक्स, तो ई एक्स क्या होगा 1 बाय 2 पाई माइनस, फॉर्मूला तो यही होता है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट मॉड ऑफ एक्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर डी ऑफ ओमेगा, यही होता है ना। तो इसमें हम वैल्यू तो रख सकते हैं, जैसे 1 बाय 2 पाई कर सकते हैं, ये वैल्यू है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, क्योंकि एक्स ऑफ ओमेगा वैल्यू इज रेंजिंग फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट इन वैल्यू। तो यहाँ पे आ जाएगा मॉड ऑफ एक्स ओमेगा कितना आएगा 1 बाय 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर डी ऑफ ओमेगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1 बाय 2 पाई आ जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ ओमेगा और माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, जो कि वैल्यू होगी 1 बाय 2 पाई 2 इंटू टेन इनवर्स ऑफ इनफाइनाइट, है ना, और ये वैल्यू आ जाएगी 2 कटा 1 बाय पाई आ गया, 1 बाय पाई आया, और टेन इनवर्स इनफाइनाइट कितना था पाई बाय 2, है ना, तो ये कटा आ गया आपका 1 बाय 2।
जूल। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या, ये एनालाइज कर पा रहे हैं क्या कि इन इनपुट वी आर गिविंग हाफ जूल, मतलब अगर इनपुट में जो सिग्नल है उसकी एनर्जी कितनी है, हाफ जूल है, और आउटपुट में जो एनर्जी आ रही है वो कितनी है, 1/4 जूल है। तो कहीं ना कहीं लो पास फिल्टर आधी एनर्जी को खा जा रहा है ना, आधी एनर्जी को पास होने ही नहीं दे रहा है। तो जो हम 50% एनर्जी बैंड और ये सब निकाल रहे थे, वही एक्चुअली ये इसका मैथमेटिकल चीज है, जो क्वेश्चन से आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि हम करना क्या चाह रहे थे। ठीक है, ठीक है, तो ये सब चीजें होती रहती हैं। अब हम लोग विल गो फॉर आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द लास्ट टॉपिक फॉर फोरियर ट्रांसफॉर्म, एंड विल सी राइट हियर, दैट इज कोरिलेशन कोरिलेशन ऑफ सिग्नल्स। ओके, कोरिलेशन ऑफ सिग्नल्स। देखिए, कोरिलेशन इन हिंदी भी से समानता है ना, मतलब कितना एक सिग्नल दूसरे सिग्नल या खुद के सिग्नल के साथ समानता है, कितना कोरिलेट कर पा रहा है अपने आप को। हम लोग बोलते हैं ना कि ये से कोरिलेट कर रहा है, मतलब ये इसके और इसके में कितनी समानता है, उसको हम लोग कोरिलेशन ऑफ सिग्नल्स कहते हैं। तो ये दोनों में होता है। इट हैपेंस फॉर बोथ टाइप ऑफ सिग्नल। अगर आपका जो सिग्नल आपने भेजा है वो हो सकता है कि वो एनर्जी सिग्नल हो, और हो सकता है वो पावर सिग्नल हो। तो चाहे योर सिग्नल इज एनर्जी और पावर, कोरिलेशन कैन बी कैलकुलेटेड फॉर बोथ टाइप ऑफ सिग्नल। तो पहले हम लोग कोशिश करते हैं एनर्जी सिग्नल्स को देखते हैं कि अगर आपकी सिग्नल एनर्जी है, ठीक है, कोरिलेशन फॉर एनर्जी सिग्नल्स। अगर आपकी सिग्नल, इफ योर सिग्नल इज एनर्जी सिग्नल, देन व्हाट हाउ विल कैलकुलेट, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला अलग होता है इसलिए मैं अलग अलग बता रहा हूँ कि एनर्जी सिग्नल के लिए हम लोग देखते हैं। देखिए, इसका आपको मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ। जैसे आपको इसका फॉर्मूला ये होता है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कि इसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, कोरिलेशन को आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। आर ऑफ, लेट सपोज कि दो सिग्नल है आपके पास, एफ ऑफ टी एक सिग्नल है, वन सिग्नल इज एफ ऑफ टी एंड अनदर सिग्नल इज जी ऑफ टी। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल कैलकुलेट कोरिलेशन, वी नीड टू कैलकुलेट फॉर कोरिलेशन, सो आर ऑफ एफ इंटू जी, और इसका जो वो होता है, वो फंक्शन होता है, ये टाउ का फंक्शन होता है ना, टाउ याद रखिएगा। जैसे हम कॉन्वोल्यूशन में टी से रिप्रेजेंट करते हैं टाइम डोमेन में, है ना, वैसे ये होता है हमारा टाउ से। और इसका फॉर्मूला होता है माइनस, बिल्कुल कॉन्वोल्यूशन टाइप का ही होता है, हल्का फुल्का चेंज है। आपका एक, जैसे आपका एक सिग्नल है तो ये आपका एफ ऑफ टी हो जाएगा, और जी दूसरे सिग्नल को आप क्या कर दीजिए, शिफ्ट कर दीजिए, जी ऑफ टी माइनस टाउ, थोड़ा सा शिफ्ट कर दीजिए, और फिर यू मल्टीप्लाई एंड इंटीग्रेट, तो आपको उनके बीच में कोरिलेशन समझ में आएगा। मतलब आपका देखिए, एक सिग्नल है, कोई अपने टाइम डोमेन में होगा, दूसरा सिग्नल हो सकता है अपने टाइम डोमेन में हो, तो वो जो दूसरा सिग्नल है ना, उसको ऐसे शिफ्ट कर, मतलब अपन उसको शिफ्ट करना है इस टाइम डोमेन में लाके, और फिर उसको इंटीग्रेट करके देखना है कि कितना कोरिलेशन है, कितने इन दो, इसका इसके में पार्ट है या इसका समानता है इसके अंदर में। ठीक है, तो वो हम लोगों को यहाँ पे देखनी है। तो ये फॉर्मूला है, और इसमें एफ ऑफ टी का इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे इंटीग्रेट भी डी ऑफ टी से होगा, है ना, ये आपका होगा। यही क्वेश्चन मेरे को हैव बीन आस्क्ड इन आईआईटी बॉम्बे आल्सो वन एमटेक इंटरव्यू, सो दे टोल्ड मी टू राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर कॉन्वोल्यूशन एंड कोरिलेशन, ये दोनों को बताइए करके। तो दैट टाइम आई वाज गेटिंग कंफ्यूज कि यहाँ पे टी होगा कि यहाँ टाउ, मतलब यहाँ टी होगा, यहाँ टाउ होगा कि यहाँ टी होगा, आई वाज गेटिंग कंफ्यूज, बट then they told okay, see, यहाँ पे हम f of t है, एक सिग्नल को हमने एज इट इज रख दिया, वी हैव टेकन एज इट इज सिग्नल, एंड दूसरे सिग्नल को हमने वो कर दिया, क्या बोलते हैं, बस शिफ्ट किया है। कितने से शिफ्ट किया है, दिस इज द शिफ्टिंग पैरामीटर, ये आपका जो है वो शिफ्टिंग पैरामीटर है ना, शिफ्टिंग पैरामीटर, या फिर इसको जनरली स्कैनिंग पैरामीटर भी कहा जाता है, ये सर्चिंग पैरामीटर भी, ये सर्च कर रहा है, ये शिफ्ट कर रहा है कि कितना शिफ्ट हो रहा है ना। तो अल्टीमेटली ये जो डोमेन है वो डोमेन तो सेम है, एफ ऑफ टी ही है, जी ऑफ टी ही है, लेकिन टी में थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया हम लोग। और कॉन्वोल्यूशन अगर आपको याद होगा तो कॉन्वोल्यूशन में हम क्या करते थे, आपको माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट लेते थे, हम दोनों का डोमेन चेंज कर देते थे, एफ ऑफ टाउ कर देते थे, याद है, और फिर हम करते थे जी ऑफ टी माइनस टाउ, ये बेसिकली जी ऑफ टाउ ही था लेकिन टी से शिफ्ट हो रहा था, है ना। और इसलिए हमारा यहाँ पे जो पैरामीटर था वो डी ऑफ टाउ था, है ना, ये डी ऑफ टाउ था, क्योंकि हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं टाउ के टर्म्स में। यहाँ पे हमने सिर्फ सिग्नल को टी ही में रखा है, अपने सिग्नल को हमने टाइम डोमेन में रखा है, तो फिर इंटीग्रेट भी तो डी टी से ही होगा ना, इसलिए। तो ये आपका जो है, ये इसको हम कॉन्वोल्यूशन बोलते हैं,
convolution जो फॉर दैट इज फॉर कैलकुलेटिंग द रिस्पॉन्स ऑफ आउटपुट। और दिस इज आपका कोरिलेशन। जब हमको कोरिलेशन निकालना होता है तो कोरिलेशन को याद रखिएगा कि ये टाउ से होता है रिप्रेजेंट, है ना, तो ये टाउ से होता है। और यहाँ पे हम जैसे y ऑफ t मान लेते हैं, तो y ऑफ t बेसिकली यहाँ पे t आता है। जब कंप्लीट हो जाता है, ये इंटीग्रेट हो जाता है, तब सिग्नल आपका टी में आता है। और ये पूरा जब स्कैनिंग कर लेता है तो ये स्कैनिंग जो पैरामीटर, शिफ्टिंग पैरामीटर, ये उसके टर्म्स में ये टाउ आता है ना। दिस इज योर बेसिक थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड फॉर दिस। ये बेसिकली जो दो सिग्नल्स व्हेनेवर वी कोरिलेट टू सिग्नल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नल, तो उस समय हम उसको बोलते हैं क्रॉस कोरिलेशन। मतलब क्रॉस, एक तो क्रॉस कोरिलेशन होता है, क्रॉस कोरिलेशन, और एक होता है ऑटो कोरिलेशन। ओके, ऑटो कोरिलेशन। तो व्हाट इज क्रॉस कोरिलेशन? क्रॉस कोरिलेशन इज इफ यू आर कैलकुलेटिंग आर ऑफ एफ ऑफ जी टाउ, मतलब दो अलग अलग सिग्नल है, उसका अगर आप निकाल रहे हैं पैरामीटर, तो क्रॉस कोरिलेशन। और अगर आप अपने ही सिग्नल का अपने ही से ही अगर आप कोरिलेट कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं ऑटो कोरिलेशन। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, क्रॉस एंड ऑटो कोरिलेशन। ओके, अब देखिए अगर आप कायदे से देखें तो आर ऑफ, मान लीजिए आर ऑफ एफ ऑफ जी टाउ का फॉर्मूला होता है माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट आपका एफ ऑफ टी जी ऑफ टी माइनस टाउ, और डी आपका टी, है ना, डी टी होता है। अभी ये बिल्कुल वैसा दिख रहा है जैसा आप अगर आप कॉन्वोल्यूशन के टर्म्स में देखेंगे तो आप एफ ऑफ टी को कॉन्वॉल्व करेंगे g ऑफ माइनस टी के साथ, g ऑफ, क्योंकि g ऑफ माइनस टी मतलब आपका जो भी सिग्नल g ऑफ टी है उसको आपने रिवर्स कर दिया, ठीक है। और उसको आप क्या करेंगे, g ऑफ टी के साथ, f ऑफ टी के साथ कॉन्वॉल्व कर लेंगे जब t की वैल्यू टाउ है, जब ये t की वैल्यू टाउ है और उसके साथ आप कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा आपका ये है। तो कोरिलेशन सेकेंड फॉर्मूला अगर आपको इस फॉर्मूले से करना है, यू कैन solve by this formula correlation, and you can also solve your correlation from this formula f of t convolution of g of minus t when t is equal to tau। ठीक है, ये है आपका फॉर्मूला। अब आप अगर ऑटो कोरिलेशन निकाल रहे हैं तो ऑटो कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एफ ऑफ टी इंटू एफ ऑफ टी माइनस टाउ, एफ ऑफ डी टाउ, ये हो जाएगा आपका ऑटो कोरिलेशन का फॉर्मूला। और इसी को आप दूसरे फॉर्मूले से कैसे देख सकते हैं, आप इसको ये फॉर्मूला से भी देख सकते हैं कि आप या तो उसको आप ऐसे कर लीजिए एफ ऑफ टी कॉन्वोल्यूशन ऑफ एफ ऑफ माइनस टी व्हेन टी इज इक्वल टू टाउ, ये है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर, ये आपका फॉर्मूला है ऑटो कोरिलेशन, और दिस इज द फॉर्मूला फॉर क्रॉस कोरिलेशन। ओके फाइन, तो ये है। ओके अच्छा, अभी अगर मान लीजिए आपका जो f ऑफ टी, लेट सपोज लेट आपका लेट अगर f ऑफ टी आपका इज इवन सिग्नल, इवन और ऑड तो जानते ही होंगे, अगर f ऑफ टी आपका इवन है तो क्या होगा कंडीशन उसके लिए, f ऑफ टी विल बी इक्वल टू f ऑफ माइनस टी। ये तो हम वी हैव स्टडीड इन इवन पार्ट। तो ऐसे में क्या होगा, r ऑफ f ऑफ टाउ क्या हो जाएगा, f ऑफ टी कॉन्वोल्यूशन विथ एफ ऑफ टी, है ना, अपने आप से ही ये कॉन्वोल्यूशन हो जाएगा, और t इज इक्वल टू टाउ। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि एफ ऑफ टी, ठीक है, एफ ऑफ टी और एफ ऑफ ये, अगर आप इसको कॉन्वोल्यूशन को अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखना चाहते हैं तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ ओमेगा का स्क्वायर आप कर सकते हैं, क्योंकि इनटू एफ ऑफ ओमेगा, है ना, एफ ऑफ ओमेगा, एफ ऑफ ओमेगा, तो एफ ऑफ ओमेगा का स्क्वायर भी आप इसको मान सकते हैं। तो ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, आई विल टेल यू लेटर ऑन। तो आपको मेरे ख्याल से कोरिलेशन ऑफ सिग्नल का हल्का फुल्का आइडिया हुआ होगा, यू मस्ट हैव गॉट लिटिल बिट ऑफ आइडिया कि कोरिलेशन क्या होता है, क्रॉस कोरिलेशन, ऑटो कोरिलेशन, व्हाट इज ऑटो कोरिलेशन एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू कॉन्वोल्यूशन, एंड दिस आर द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग। सो लेट्स कैलकुलेट फॉर अ सिग्नल एंड देन वी विल गेट अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट दिस ऑल वैल्यू। सो विल सी वन वैल्यू, आपको एक वो दिखाता हूँ कि आपको एक सिग्नल दिया हुआ है, ये एक सिग्नल है ना, ये सिग्नल किस में है, टाइम डोमेन में आपका ये सिग्नल है, और ये इसकी वैल्यू है, लेट सपोज 0 से 1 वैल्यू है, और इसको हम लोग f ऑफ t बोलते हैं, ये मैग्नीट्यूड भी इसका 1 है। अब इसको बोल रहा है कि यू नीड टू कैलकुलेट इट्स ऑटो कोरिलेशन, आपको ऑटो कोरिलेशन निकालना है। तो आपको पता है ऑटो कोरिलेशन निकालने का सबसे अच्छा तरीका, आसान तरीका,
कि आप क्या कर लीजिए, एफ ऑफ टी कॉन्वोल्यूशन विद एफ ऑफ माइनस टी कर लीजिए, और व्हेन टी इज इक्वल टू टाउ कर दीजिए आप, है ना। यही एक आसान तरीका है जब आप आर ऑफ एफ ऑफ टाउ आप निकाल सकते हैं। तो कर लेते हैं भैया, एफ ऑफ टी तो हमको मालूम है, ठीक है, एफ ऑफ टी हमको मालूम है, ये है एफ ऑफ टी 0 से 1, और इसको हम कॉन्वॉल्व करते हैं एफ ऑफ माइनस टी के साथ। तो एफ ऑफ एक मिनट, हाँ, एफ ऑफ माइनस टी, तो हम इसको रोटेट कर लेते हैं -1 से 0। अब आपको पता है कि दो स्टेप सिग्नल जो है पल्स सिग्नल, इसको कॉन्वॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है, एक ट्रायंगुलर पल्स मिलता है। तो ट्रायंगुलर कहाँ से मिलेगा, लोअर लिमिट आपका 0 है, -1 है, तो -1 से, ठीक है, और यहाँ ट्रायंगुलर -1 से +1 वैल्यू ये है, ठीक है। और स्लोप कितना होगा इन दोनों का मल्टीपल, तो 1 ऑफ 1 1 होगा, यहाँ -1 स्लोप होगा। तो ये है वैल्यू, और ये बेसिकली आप इसको टी को टाउ कर दीजिए। तो दिस इज योर आउटपुट, दिस इज योर ऑटो कोरिलेशन। हम ऑटो कोरिलेशन निकाल रहे थे इस सिग्नल का, अपने आप से इजी, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है, देयर इज नथिंग डिफिकल्टी ऑफ कॉन्वोल्यूशन, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन आवर मॉड्यूल 2, detail in detail we have studied. So I think agar if you know to how to calculate convolution, then it is easy to calculate correlation, very easy. So we'll see again another question, how we can do it. So I'll write here question, let's do one more question. You need to find the auto correlation ऑफ सिग्नल्स। एक सिग्नल है जिसका ऑटो कोरिलेशन आपको निकालना है। लेट सपोज एफ ऑफ टी इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस a ऑफ t u ऑफ t। अब इसका आपको ऑटो कोरिलेशन निकालना है ना। तो ऑटो कोरिलेशन का देखिए, आपके दिमाग में ऑटो कोरिलेशन निकालना है तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ऑटो कोरिलेशन? ऑटो कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या है? आपको आर ऑफ एफ ऑफ टाउ आपको पता होना चाहिए, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट आपका एफ ऑफ टी को रखेंगे ही, एफ ऑफ टी माइनस टाउ को भी रखेंगे, डी टाउ कर देंगे, या फिर इसका सिंपल फॉर्मूला क्या है, एफ ऑफ टी कॉन्वोल्यूशन विद एफ ऑफ माइनस टी, और आपका यहाँ पे है टी इज इक्वल टू टाउ, ये है। तो मेरे ख्याल से ये वाला करना आसान है, या फिर इसको और ऐसे भी करना आपको आसान होगा कि इसको आप ऐसे कर लीजिए, अगर इवन नहीं है तो एफ ऑफ ओमेगा कर लीजिए मल्टीप्लाइड एफ ऑफ माइनस ओमेगा कर लीजिए, है ना। एफ ऑफ ओमेगा या इंटू एफ ऑफ माइनस ओमेगा भी आप कर सकते हैं। तो देखिए आपको मेरे ख्याल से क्वेश्चन है e टू द पावर माइनस a ऑफ t u ऑफ t, इसका एफ ऑफ ओमेगा निकालना बड़ा आसान है, इसको आप निकाल सकते हैं। क्या निकालेंगे? इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म 1 बाय ए प्लस जे ओमेगा, ये इसका एफ ऑफ ओमेगा है। तो यहाँ आप लिख लीजिए ए ऑफ जे ओमेगा इंटू 1 बाय ए माइनस जे ओमेगा, है ना, माइनस ए माइनस जे ओमेगा, जिसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 1 बाय ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, है ना। ये है अल्टीमेटली, ये है आपका एफ ऑफ टी इन कॉन्वोल्यूशन ऑफ एफ ऑफ माइनस टी है, उसी का फ्रीक्वेंसी में इसको है। अच्छा, इसका तो टाइम डोमेन में कैसे निकालेंगे? तो आपको ये पता है, देखिए ई टू द पावर माइनस ए ऑफ मॉड टी की ऑफ, ठीक है, ए ऑफ मॉड टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 2a बाय ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये होता है। तो अगर हम इसका 2a को इधर ले जाएं तो 1 बाय 2a ई टू द पावर माइनस ए मॉड टी, इसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा कि नहीं, 1 बाय ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर का। तो अल्टीमेटली व्हाट वी वर ट्राइंग कि एफ ऑफ टी कन्वर्जन ऑफ एफ ऑफ माइनस टी को वी हैव डन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन एंड नाउ विल टेक अगेन इन टाइम डोमेन। तो दिस इज द वैल्यू विच वी आर गेटिंग इन टाइम डोमेन। ये है एक्चुअली आपका क्या है, ये आपका बेसिकली एफ ऑफ टी कन्वर्जन ऑफ एफ ऑफ माइनस टी। अल्टीमेटली ये आर ऑफ एफ ऑफ टाउ है, अभी ये टी में ही है। इसको आप व्हेन टी इज इक्वल टू टाउ, क्योंकि हम यहाँ लिखते हैं टी इज इक्वल टू टाउ, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि फाइनली आर ऑफ एफ ऑफ टाउ की वैल्यू क्या है, 1 बाय 2a ई टू द पावर, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं ई टू द पावर माइनस ए मॉड टाउ, है ना, क्योंकि टी इज इक्वल टू टाउ होगा। सो दिस इज द वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ आर ऑफ एफ ऑफ टाउ एंड दिस इज द आंसर। सो देखिए, auto correlation, to find auto correlation for a
this type of signal, for this type of signal is very easy. If what you need to understand is only convolution or f of omega. Fourier transform निकालना आता है आपको. If you know how to calculate Fourier transform, then it is very easy to calculate autocorrelation also. Now we will see some properties of autocorrelation. What will be the some properties of autocorrelation? So देखिए, सबसे पहला प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपका ये जो आर ऑफ एफ ऑफ टाउ, मतलब ये जो हम कोरिलेटेड वैल्यू निकालते हैं, वॉट एवर दिस इज द कोरिलेटेड वैल्यू, है ना. इफ दिस इज इवन इन नेचर, अगर ये इवन इन नेचर है, जैसे ये अभी आया 1/2a e to the minus a टाउ, ये ऑब्वियसली इवन है क्योंकि ये दोनों तरफ है ना. तो अगर ऐसा आर एफ ऑफ टाउ इवन होगा, तब हम ये बोल सकते हैं कि आर ऑफ एफ ऑफ माइनस टाउ is equal to r of f of tau. ये मैं this property, all this property are asked in directly questions, one liner questions में ये पूछे जाते हैं कि ये ऐसा है, is it true or not, या फिर इसमें कौन सी प्रॉपर्टी, 3-4 प्रॉपर्टी दे रहती है, वो बोलते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है ऑटो कोरिलेशन को. तो आपको प्रॉपर्टी समझ में आना चाहिए कि क्या क्या बोल रहा है. दूसरा, जब हम आर ऑफ एफ ऑफ जीरो लेते हैं, मतलब जब टाउ की वैल्यू जीरो है ना, जब टाउ की वैल्यू जीरो है, जब कोई भी हम सर्च नहीं कर रहे हैं, आप टाउ की वैल्यू को समझ पा रहे हैं. जीरो का मतलब इफ यू relate this value tau is equal to 0, you can understand that we are not shifting anything. See, f of t is f of t, which you have been given in question. G of t minus tau is g of t shifted by tau, but now when tau is equal to 0 means we are not shifting anything, and then the correlation between these two signal is called r of f of 0. So r of f of rff is 0 will always be greater than, ये वैल्यू हमेशा बड़ी होगी r of f of tau. जो नॉर्मल टाउ जितने से आप शिफ्ट कर रहे हैं उससे तो ये ज्यादा ही होगी हमेशा. ठीक है, तो ये पैरामीटर को आप याद रखिएगा. तीसरा आपको ये है कि देखिए r ऑफ f ऑफ 0 की मतलब क्या होता है. r ऑफ f ऑफ 0 की मतलब क्या है, देखिए r ऑफ f टाउ का तो मतलब सिंपल होता है कि माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट आप x ऑफ लेट्स सपोज ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा कर लेते हैं, है ना. अगर आप सिर्फ f का ले रहे हैं, f ले लीजिए, f ऑफ ओमेगा का स्क्वायर डी ओमेगा, ये होता है. अभी ये तो होता है ये होता है, ठीक है. अब आपको ये पता है क्या कि ये देखिए ये कहाँ से आया, ये आपका वैल्यू एक्चुअली में आया है, ये वैल्यू आपका कहाँ गया, देखिए r ऑफ f ऑफ टाउ का है f ऑफ t कन्वोल्यूशन ऑफ f ऑफ माइनस t, है ना. और हम क्या किए हैं, इसको f ऑफ ओमेगा लिख लिए हैं. देखिए आपको मैं फिर से इसको यहाँ पे अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो बताता हूँ. देखिए ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, ये फॉर्मूला ऐसा आया है कि आपको r ऑफ टाउ का सिंपल वैल्यू होता है f ऑफ t माइनस टाउ dt, है ना, ये होता है. अब आप इसकी को ऐसा भी लिखते हैं कि f ऑफ t कॉन्वोल्यूशन विथ f ऑफ t माइनस f ऑफ माइनस t when t is equal to tau. इसी को आप ऐसा भी लिखते हैं f ऑफ ओमेगा इंटू एफ ऑफ माइनस ओमेगा, ठीक है. और आप इसको फिर लिखते हैं f ऑफ ओमेगा इंटू एफ ऑफ माइनस ओमेगा क्या होता है, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं f ऑफ ओमेगा का f ऑफ एब्स्ट्रैक्ट ओमेगा भी लिख सकते हैं, जिसको आप लिख सकते हैं मॉड ऑफ f ऑफ ओमेगा का स्क्वायर. क्योंकि कभी भी आप लेट सपोज f ऑफ ओमेगा आपका a प्लस जे बी है ना, a प्लस जे बी, तो f ऑफ एब्स्ट्रैक्ट ऑफ ओमेगा कितना होगा, a माइनस जे बी. आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू मॉड ऑफ f ऑफ ओमेगा का स्क्वायर, है ना. तो ये ऐसा ही होता है जनरली, इसलिए इसको मॉड ऑफ f ओमेगा. तो यहाँ पे हम टोटल यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे इसको लिखा जा सकता है मॉड ऑफ f ऑफ ओमेगा, मतलब सॉरी, तो ये फॉर्मूला एक्चुअली इसको ऐसा नहीं लिखना चाहिए, इसमें ना हमको इसको हटा देना चाहिए, है ना. ये वैल्यू हटा देना चाहिए. ओके, डी ओमेगा को भी हटा देना चाहिए. हाँ, तो अल्टीमेटली मैं आपको क्या बोलना चाह रहा था कि आर ऑफ एफ ऑफ टाउ
को हम मॉड ऑफ एफ ऑफ ओमेगा का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लेकिन ये आर ऑफ एफ ऑफ टाउ टाउ बेसिकली ये तो टाउ है, ये तो दूसरे डोमेन में, ये तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में है, तो कहीं ना कहीं आप इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है बेसिकली कि जब कभी भी आर ऑफ आपका मतलब कोरिलेटेड वैल्यू है, ठीक है, कोरिलेटेड वैल्यू चाहे ऑटो कोरिलेशन हो चाहे क्रॉस कोरिलेशन हो, इसका अगर आप फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे ना, इसका फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट देखेंगे, तो आपको बिल्कुल मॉड ऑफ एफ ऑफ ओमेगा का स्क्वायर ही मिलेगा, है ना। और अगर ये मिल गया तो मतलब अगर आर एफ एफ वाला है तो ये स्क्वायर मिलेगा, और अगर ये स्क्वायर मिला तो क्या होगा कि इसी को आप तो ESD भी बोलते हैं, तो ESD ऑफ एफ आप मान के चलिए, है ना, जो इनपुट है आपका वो आप मान के चलिए। तो आप इसको ये भी बोल सकते हैं, मतलब देखिए सिंपल मैं आपको क्या बताना चाह रहा था कि अगर आपके पास ऑटो कोरिलेटेड वैल्यू है, ऑटो कोरिलेटेड वैल्यू है, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म इफ यू कैन कैलकुलेट फोरियर ट्रांसफॉर्म फॉर ऑटो कोरिलेटेड वैल्यू, यू विल गेट इट्स ESD, ठीक है। तो ये रिलेशन है ESD और RFF टाउ ऑटो कोरिलेटेड वैल्यू का। ओके फाइन। नेक्स्ट हमारा जो प्रॉपर्टी है वो ये कहता है कि देखिए पांचवा प्रॉपर्टी अपन, पांचवा है कि चौथा है, आई थिंक तीसरा था, चौथा प्रॉपर्टी है। तो चौथा प्रॉपर्टी ये कहता है कि जो कि आर एफ एफ टाउ का वैल्यू होता है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एफ ऑफ टी इंटू एफ ऑफ टी माइनस टाउ टाउ डी टाउ। अगर हम टाउ की वैल्यू जीरो रख दें तो क्या होगा, आर ऑफ एफ जीरो, इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एफ ऑफ टी डी टी, जो जो वैल्यू क्या हो जाएगा, जो वैल्यू हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एफ स्क्वायर टी डी टी, जो कि आपको ये फॉर्मूला अगर याद होगा तो मॉड्यूल 1 में हमने एनर्जी के लिए भी पढ़ा था, है ना, एनर्जी के लिए भी यही फॉर्मूला होता है। तो अल्टीमेटली अगर आपको एनर्जी कैलकुलेट करना है, ठीक है, एनर्जी कैलकुलेट करना है, तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि अगर आपको ऑटो कोरिलेटेड वैल्यू मिला है तो आप उसमें टाउ की वैल्यू जीरो रख दीजिए, तो आपको एनर्जी यहाँ पे आ जाएगी। ओके, सो लेट्स मूव ऑन फर्दर एंड सी कि देखिए अगर आपका एक और प्रॉपर्टी हम देखते हैं, दैट इज अगर आपका क्रॉस कोरिलेशन है, लेट्स सपोज दिस इज योर क्रॉस कोरिलेशन वैल्यू, ये वैल्यू अगर आप रिवर्स भी कर देना, ऐसा नहीं है कि एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी को इस सीक्वेंस में रखें, तो अगर आप इसको उल्टा भी कर दें तो भी वो है आर ऑफ जी एफ कर दें, लेकिन फिर ये माइनस टाउ होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको याद रहना चाहिए कि देखिए जब एफ ऑफ जी टाउ दिया है, अगर आपको जी और एफ टाउ करना है तो उसको आप टाउ को माइनस यू नीड टू शिफ्ट इट, देन इट्स देयर। तो आर ऑफ इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं कि आर ऑफ सिक्स प्रॉपर्टी हम ये भी लिख सकते हैं, आर ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ टाउ विल बी नथिंग बट आपका एफ ऑफ टी को कॉन्वॉल्व करेंगे आप जी ऑफ माइनस टी के साथ, और आप क्या करेंगे टी ऑफ टाउ कर देंगे, टी इज इक्वल टू टाउ, जिसको आप ऐसा लिख सकते हैं एफ ऑफ ओमेगा इंटू जी ऑफ एब्स्ट्रिक्ट ऑफ ओमेगा भी लिख सकते हैं, ये आप किया जा सकता है। तो ये बेसिकली ये इक्वल टू नहीं है, ये आपका इसको आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये फोरियर ट्रांसफॉर्म है ना। तो आर एफ जी टाउ का फोरियर ट्रांसफॉर्म दिस इट विल लीड टू दिस वैल्यू। ओके, सो यहाँ कुछ प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखी कंप्लीट की। अब मैं आपको इसी का, अब आपको मेरे ख्याल से अधिकतम चीजें पता चल गई है, तो मैं आपको इसी का दूसरा वर्जन बताऊंगा फॉर पावर सिग्नल्स, ठीक है। फॉर पावर सिग्नल्स के लिए, अगर सिग्नल आपका पावर है, अब आपको मालूम है ना कि देखिए पावर क्या होता है, जब आप आई हैव टोल्ड यू इन मॉड्यूल 1 आल्सो कि जब आपका एनर्जी इनफाइनाइट हो जाता है, किसी सिग्नल की एनर्जी इनफाइनाइट है, देखिए पहले तो आपको ये पता होगा कि किसी सिग्नल की अगर एनर्जी फाइनाइट है ना, फाइनाइट, तो उसका क्या है, पावर कितना आता है, जीरो आता है, प्योर नहीं होता उसका। लेकिन अगर एनर्जी इनफाइनाइट हो जाता है तब फिर उसका पावर एग्जिस्ट करता है ना, पावर एग्जिस्ट करता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ सिग्नल्स का एनर्जी भी इनफाइनाइट होता है, पावर भी इनफाइनाइट होता है ना, कई बार ऐसे सिग्नल्स भी होते हैं, ठीक है। तो नाइदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल्स वो कहलाते हैं, लेकिन अभी हम लोग ये बात कर रहे हैं कि जिस सिग्नल की एनर्जी इनफाइनाइट है और पावर हमारी फाइनाइट है, ठीक है, ये फाइनाइट वैल्यू पावर की आ रही है, तो उस सिग्नल को हम पावर सिग्नल कहते हैं, दिस इज आवर पावर सिग्नल। तो हम क्या करते हैं, इसका हम प्रॉपर्टी देखने की कोशिश करते हैं। देखिए आपको पता है कि पावर निकालने का तरीका क्या होता है, एनर्जी निकालने का तरीका तो आपको पता है कि एनर्जी तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एफ ऑफ स्क्वायर टी डी टी से निकल जाता है।
पावर कैसे निकलता है? पावर ऐसा नहीं निकलता, क्योंकि पावर आप निकालने जाएंगे तो वो एनर्जी तो इनफाइनाइट है उसकी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका वैल्यू ऐसा लेना पड़ता है, लिमिट टी टेंडिंग टू इनफाइनाइट, टी टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/t, और उसके बाद आपको एक पीरियड के लिए -t/2 से t/2 एफ ऑफ स्क्वायर टी डी टी लेना पड़ता है ना। ये आपका वैल्यू होता था, ठीक है, पावर निकालने का फॉर्मूला, क्योंकि नॉर्मल अपन निकाल नहीं सकते, तो यहाँ पे हम अब सिग्नल पावर है, योर सिग्नल इज पावर एंड यू व्हाट यू नीड टू कैलकुलेट, यू नीड टू कैलकुलेट आर ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ टाउ। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला तो वही रहेगा, फॉर्मूला तो वही रहेगा, एफ ऑफ टी इंटू जी ऑफ टी माइनस टाउ डी टी, है ना, ये रहेगा हमारा। अब मुद्दे की बात ये है कि ये भी पावर है, ये भी पावर है, पावर इनटू पावर, ठीक है, पावर का ही रहता है। और उसके बाद हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि ये डायरेक्ट बेसिकली अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे पावर इनटू पावर और फिर माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट लेंगे, तो वो वैल्यू टोटल इनफाइनाइट आ जाएगी, तो आर ऑफ एफ ऑफ जी टाउ तो मिलेगा नहीं हमको। तो हम क्या करते हैं इसको, वही जैसे पावर में हम लोगों ने किया था कि हमने लिमिट टी टेंडिंग टू इनफाइनाइट वन एवरेज वैल्यू ले लिया था, वैसे यहाँ पे भी करना होगा। सो आर ऑफ फाइनली आर ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ टाउ की वैल्यू होगी लिमिट टी टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट, ठीक है, आपका 1/t रहेगा, और फिर यहाँ पे रहेगा -t/2 से t/2 एफ ऑफ टी रहेगा इनटू जी ऑफ टी माइनस टाउ डी टी, ठीक है। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर क्रॉस कोरिलेशन, दिस इज द फॉर्मूला फॉर क्रॉस कोरिलेशन ऑफ अ सिग्नल फॉर ऑफ अ पावर सिग्नल, ठीक है, ये पावर सिग्नल का क्रॉस कोरिलेशन वैल्यू ये ऐसा कुछ है, ठीक है, ओके फाइन, ठीक है। और अगर ये एफ ऑफ टी पावर में हम लोगों ने ये भी, अगर आपको याद होगा कि पावर में हमने एक केस देखा था पीरियोडिक का, अगर ये सिग्नल पीरियोडिक हुआ तो क्या होगा, तो पीरियोडिक होता है तो हम लिमिट वाला वैल्यू हटा देते हैं, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं फॉर पीरियोडिक सिग्नल्स, फॉर पीरियोडिक सिग्नल, ओके, आपका ये आ जाएगा आर ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ टाउ, ठीक है, आर ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ टाउ, लिमिट हट जाएगा, बस 1/t रह जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा -t/2 से t/2 एफ ऑफ टी जी ऑफ टी माइनस टाउ डी टी। ये है आपका पीरियोडिक सिग्नल के लिए क्रॉस कोरिलेशन वैल्यू, है ना। और अगर ऑटो कोरिलेशन करेंगे तो यही एफ ऑफ टी और ये एफ ऑफ टी माइनस टाउ हो जाएगा, सिंपल सा बात है। तो देखिए इसमें कॉन्वोल्यूशन नहीं अप्लाई हो सकता, इसमें जो दूसरा फॉर्मूला है ना कि आप ऐसे कर लें एफ ऑफ टी इंटू जी ऑफ टी माइनस, ये नहीं कर सकते, क्योंकि दिस इज एवरेज वैल्यू, इस 1/t की वजह से आप वो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। आपको अगर पीरियोडिक सिग्नल या पावर सिग्नल दिया है तो आपको इस फॉर्मूले से ही आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आपको मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, बताता हूँ, जो क्वेश्चन कई बार गेट एग्जाम, इसरो एग्जाम, बड़े बड़े एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, यही क्वेश्चन, और रिपीट भी होता है बहुत बार। तो इस क्वेश्चन ही को हम प्रैक्टिस करते हैं कि आपको फाइंड ऑटो कोरिलेशन, आपको ऑटो कोरिलेशन निकालना है, ऑटो कोरिलेशन, ठीक है, ऑटो कोरिलेशन निकालना है किस सिग्नल का, एफ ऑफ टी आपको दिया है ए कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टी प्लस 5, ए कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टी प्लस 5 का आपको ऑटो कोरिलेशन निकालना है। अब यू हैव बीन गिवन अ क्वेश्चन एंड यू नीड टू कैलकुलेट ऑटो कोरिलेशन वैल्यू। तो दिमाग में सबसे पहला अप्रोच क्या आएगा कि मैं इसको कैसे सॉल्व करूं, फिर मैं पहले देखूंगा इस सिग्नल को कि ये सिग्नल पीरियोडिक एनर्जी है या पावर सिग्नल है, फिर आई विल फाइंड इट दैट इट इज अ एनर्जी पावर पीरियोडिक सिग्नल, इट इज अ पावर सिग्नल। तो पावर सिग्नल है तो पावर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो पावर का फॉर्मूला लगाता हूँ मैं। तो यहाँ और ऑटो कोरिलेशन निकालना है, मतलब आर ऑफ एफ ऑफ टाउ निकालना होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/t तो रहेगा ही सामने, है ना, -t/2 से t/2, क्योंकि लिमिट हट गया क्योंकि ये पीरियोडिक सिग्नल है। एफ ऑफ टी रहेगा, है ना, एफ ऑफ टी रहेगा, और फिर एफ ऑफ टी माइनस टाउ रहेगा, और डी टी रहेगा, ये रहने वाला है। तो अपन इसको करके देखते हैं, 1/t रखें, है ना, -t/2 से t/2 रखते हैं, एफ ऑफ टी कितना है, ए ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टी, है ना, यही आपका फॉर्मूला +5, ये इतना है आपका, है ना। और दूसरा क्या है, इसको t माइनस टाउ भी शिफ्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा, ओमेगा नॉट है, टी को आप थोड़ा टाउ से शिफ्ट कर दीजिए, +5 आप रख दीजिए, और डी टी रख दीजिए, ये हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ए बाहर निकाल दीजिए, ए स्क्वायर आ गया बाहर, और टी तो है ही, है ना,
उसके बाद आपको पता है कॉस ए इंटू कॉस बी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी बाय टू। तो यहाँ टू को भी आप बाहर निकाल दीजिए और आप यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है, माइनस टी बाई टू से टी बाई टू तो लिख ही लीजिए। आप लिख दीजिए कॉस ऑफ ए प्लस बी, है ना, तो ए प्लस बी कर लीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा टू ओमेगा नॉट टी, है ना, माइनस ओमेगा नॉट आपका टाउ, ठीक है, प्लस फाइव, यही रहेगा, ठीक है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे cos a प्लस बी हो गया, cos a माइनस बी करेंगे तो ओमेगा नॉट टी खत्म, ये हो जाएगा cos ऑफ, और फाइव भी खत्म, तो cos ऑफ ओमेगा नॉट टाउ ही बस रह जाएगा, है ना, ये हो गया। और इसमें आ जाएगा d ऑफ t, है ना, ये हो गया। अब व्हाट नाउ विल कैलकुलेट a स्क्वायर बाय टू टी, तो है ही हमारा बाहर। इसको हम क्या करते हैं, देखिए आप इसको समझ के देखिए कि ये सिग्नल क्या है, कॉस ऑफ, ये बेसिकली इसका ये इसका टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड, ये तो फ्रीक्वेंसी है, बेसिकली ये फ्रीक्वेंसी है, टू ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का उल्टा टाइम पीरियड होता है, तो टी इसका टाइम पीरियड हम निकालना चाहें तो टू पाई बाई ओमेगा नॉट, मतलब जो भी फ्रीक्वेंसी होता था वो करते थे, तो टू पाई बाई टू ओमेगा नॉट करेंगे तो इसकी टाइम पीरियड आ जाएगा पाई बाई ओमेगा नॉट, मतलब ये पाई बाई ओमेगा नॉट के साथ ये वो कर रहा है। और ये जो टोटल ये है, ये क्या चीज़ है, ये है आपका शिफ्टिंग पैरामीटर, ये पूरा जो है टू कॉस टू ओमेगा नॉट टी को शिफ्ट कर रहा है ना, ये चीज़ है, ठीक है। और ये कॉस ओमेगा नॉट टाउ तो रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। अब आप ये बताइए कि देखिए ये माइनस टी बाई टू से टी बाई टू चल रहा है, टी बाई टू क्या होता है, टी इज इक्वल टू टू पाई बाई ओमेगा नॉट, है ना, टू पाई बाई ओमेगा नॉट, और यहाँ टू तो पहले ही है, तो आपका टू टू कटा, तो अल्टीमेटली टी बाई टू की वैल्यू कितनी है, माइनस पाई बाई ओमेगा नॉट से ये वैल्यू प्लस पाई बाई ओमेगा नॉट जा रहा है। देखिए आप किसी चीज को लेंगे तो यहाँ पे अगर मान लीजिए आप माइनस पाई बाई ओमेगा नॉट से प्लस पाई बाई ओमेगा नॉट ले रहे हैं, प्लस पाई बाई ओमेगा नॉट इज द बाउंड्री, है ना, और ये वैल्यू क्या है, पाई बाई ओमेगा नॉट में थोड़ा शिफ्ट कर दिया, मतलब पाई बाई ओमेगा नॉट में किधर शिफ्ट किया, लेफ्ट हैंड साइड, तो ये इधर इस तरफ शिफ्ट कर दिया, मतलब ये वैल्यू बेसिकली अब यहाँ पे आ गई है, ये जो टोटल वैल्यू है वो इस तरफ आ गई है, इस रेंज में तो नहीं आई है, तो अल्टीमेटली अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे इस रेंज में तो ये वैल्यू जीरो होने वाली है, तो अल्टीमेटली ये टोटल वैल्यू कैंसल आउट हो जाएगी और अल्टीमेटली बचेगा माइनस टी बाई टू से टी बाई टू आपका, या फिर माइनस पाई बाई ओमेगा नॉट से पाई बाई ओमेगा नॉट कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टाउ, है ना, डी टी। तो अल्टीमेटली कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टाउ भी एक कांस्टेंट टर्म है, तो ये बाहर आ जाएगा, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे, इसको लिख देते हैं ए स्क्वायर बाय टू टी, है ना, और आपका यहाँ पे लिख सकते हैं हम कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टाउ, और यहाँ पे टोटल ये मल्टीप्लाई माइनस टी बाई टू से टी बाई टू, तो टोटल टी आएगा जो कि टी टी कैंसल आउट हो जाएगा, और आंसर आएगा ए स्क्वायर बाय टू कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टाउ। ये है बेसिकली आर ऑफ एफ एफ टाउ किसका, ए स्क्वायर ए कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव। दिस वॉज योर सिग्नल, this was your periodic power signal and this is autocorrelation value, ऑटो कोरिलेशन वैल्यू ऑफ दिस सिग्नल। यही अगर आप इसी का आपको मैं होमवर्क देता हूँ, आप इसको साइन में करके देखिएगा, साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी, है ना, प्लस फाइव में आप करके देखिएगा, आपको आंसर यही मिलेगा, आपको आंसर यही मिलेगा, इसका भी आंसर यही होता है, इसलिए ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, दिस हैव बीन आस्क्ड इन मेनी टाइम्स इन एग्जामिनेशन। तो ये है आपका आर ऑफ एफ टाउ, ये सिग्नल का। तो आपको मेरे ख्याल से थोड़ा तो समझ में आ रहा होगा कि हम जब पावर सिग्नल होता है तो हमको इस फॉर्मूला से ही जाना पड़ता है, ये बड़े से फॉर्मूला से ही जाना पड़ता है मैथमेटिक्स करके, और अगर हमारा एनर्जी सिग्नल है तो हम सिंपल कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी उसको फोरियर ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करके मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, और फिर बनना बहुत आसान है, इट इज़ वेरी इजी। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, बस इसकी प्रॉपर्टी हम लोग और देख लेते हैं, इसकी प्रॉपर्टी कुछ देखते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ ऑटो को आपका क्या क्रॉस कोरिलेशन हम लोग अब देख रहे हैं, मतलब क्रॉस और ऑटो तो ठीक है, पावर सिग्नल वाले सिग्नल्स के लिए हम लोग प्रॉपर्टी देख रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रॉपर्टी वो यही है, जैसा आपको मैंने पहले भी बताया कि इस सिग्नल में भी अगर आर ऑफ एफ ऑफ टाउ जो है वो अगर इवन आता है, ये अगर इवन है तो आपका आर एफ टाउ जो होगा वो आपका आर एफ माइनस टाउ के बराबर होगा। ये प्रॉपर्टी दोनों में सेम है, चाहे एनर्जी हो चाहे पावर हो, है ना। दूसरी
आर ऑफ एफ एफ जीरो वेन टाउ इज इक्वल टू जीरो, ये वैल्यू हमेशा बड़ी होती है, बराबर होती है आर ऑफ एफ एफ टाउ के, है ना। इसमें भी सेम था, इसमें भी वही सेम है ना। ये आपको याद रखना है। तीसरी वैल्यू आपको ये याद रखना है कि अगर आप आर एफ एफ जीरो अगर आप कैलकुलेट करते हैं, इसका मतलब ये है कि आर एफ एफ टाउ होता था आपका माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, वन बाय टी तो सामने रहेगा ही, एफ ऑफ टी इंटू एफ ऑफ टी माइनस टाउ डी टी। ये अगर टाउ की वैल्यू अगर जीरो हो जाए, मतलब अगर आप आर एफ एफ जीरो की वैल्यू निकालना चाहें तो आपको क्या मिलेगा, वन बाई टी माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एफ ऑफ टी इंटू एफ ऑफ टी का डी टी, जिसको आप बोल सकते हैं कि ये तो बिल्कुल पावर का पार्ट है। तो अल्टीमेटली ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि आर ऑफ एफ एफ जीरो मतलब टाउ की वैल्यू जीरो रखने पे जो ऑटो कोरिलेशन वैल्यू आती है वो इक्वल टू पावर होती है। तो पावर का तरीका आपको समझने का ये भी आप याद रख सकते हैं कि पावर ऐसे भी कैलकुलेट किया जा सकता है। पावर कैलकुलेट करने के बहुत सारे तरीके हम लोगों ने देख लिए। एक तरीका ये भी है कि अगर आपको ये ऑटो कोरिलेशन वैल्यू अगर आपको पता है, इफ यू नो ऑटो कोरिलेशन वैल्यू, देन यू कैन कैलकुलेट टाउ को जीरो रख दीजिए और पावर आ जाएगा आपका, है ना। ये सिंपल सा तरीका। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टी पे आते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर हम आर ऑफ एफ एफ टाउ, है ना, आर ऑफ एफ एफ टाउ हमारे पास है, इसको हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले जाना चाहें, है ना, तो बेसिकली इसका अगर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो हमको बेसिकली क्या मिलेगा, पीएचडी, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी मिलेगा। जैसे वहां पे हमको एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी मिलता था, वैसे यहाँ पे पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी मिलता है, ठीक है। ओके फाइन, तो ये है। अब हम लोग क्या करते हैं, we'll solve one question and we'll try to understand what is how to calculate power spectral density. So we'll solve one question. Let's suppose one question is there, आपको f of t दिया है, let's suppose यही क्वेश्चन दिया हुआ है, a sin of ओमेगा नॉट t प्लस 5, ये आपको क्वेश्चन है और आपको बोलता है कि इसका ना फाइंड करिए, फाइंड पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी। ये अगर आपको क्वेश्चन बोलता है कि आपको पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी फाइंड करना है, आप कैसे करेंगे। आपको अगर पता है कि आर एफ एफ टाउ का अगर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म लें तो इसका ना जो वैल्यू आती है, अगर ये पावर सिग्नल है तो वो पीएचडी आती है। तो हमको तो एक्चुअली इस सिग्नल का आर एफ एफ टाउ मालूम है ना, हम वी नो आर ऑटो कोरिलेटेड वैल्यू, ये क्या होता है, ए स्क्वायर बाय टू कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टाउ, ये है इसका आर एफ एफ टाउ वैल्यू। इसका अगर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म ले ले तो हमको पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी आ जाएगा। तो हमको क्या इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेना नहीं आता, आता होगा, आपको पता होगा कि देखिए कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टाउ का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है। फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है कि कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टी या कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टाउ का होता है ए स्क्वायर, आपका ए स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर क्यों करें, हम इसको ऐसा कर लेते हैं, ए चलिए ए स्क्वायर बाय टू तो है यहाँ पे, तो इसको भी लिख लेते हैं, ए स्क्वायर बाय टू यहाँ पे रह जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टाउ का पाई डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट हो जाएगा प्लस डेल्टा ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये है ये है फोरियर ट्रांसफॉर्म इसका, ठीक है। ओके, ये दिस इज योर पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी फॉर दिस टाइप ऑफ सिग्नल, वेरी इजी तरीका। अगर आपको कोई बोलता है कि इसका पावर कैलकुलेट करिए, तो पावर आपको पता है, पावर कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, वन बाई टू पाई माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, उसका आप पीएचडी वैल्यू को डी ओमेगा कर लीजिए, है ना, जैसे हम एनर्जी में करते थे। तो आपको ये पता है ये कैसे निकलता है, वन बाय टू पाई, ठीक है, वन बाय टू पाई आप कर लेंगे और माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट की वैल्यू आप लेंगे। अभी ये देखिए ये वाला जो सिग्नल है ए स्क्वायर बाय टू पाई, ए स्क्वायर पाई बाय टू, है ना, और डेल्टा ओमेगा माइनस, मतलब ये वैल्यू एक्चुअली कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, अगर ये जीरो है तो यहाँ पे ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट पे, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट पे वैल्यू कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा और ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट में कहीं वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा होगा और इसकी वैल्यू कितनी होगी, ए स्क्वायर पाई बाय टू, है ना, ये वैल्यू होगी। तो आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिएगा, ये वैल्यू है आपका, ये सारी वैल्यू आ जाएगी, डी ओमेगा आप कर लेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी वन बाय टू पाई तो है ही, ए स्क्वायर पाई बाय टू होगा इंटू ये जो
ये वैल्यू है और ये वैल्यू है, इसको 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 2 कटा, पाई पाई कटा, बेसिकली आ गया ए स्क्वायर बाय 2, है ना। तो आप देख पा रहे हैं क्या, इफ यू नो हाउ टू कैलकुलेट पावर फॉर दिस सिग्नल, हम जनरली पावर कैलकुलेट करते हैं तो कैसे करते हैं, हम इस सिग्नल का आरएमएस वैल्यू का स्क्वायर ले लेते हैं, तो ए बाय रूट टू का स्क्वायर कर लेते हैं, है ना, ए बाय रूट टू का स्क्वायर तो आता है ए स्क्वायर बाय 2, तो ए स्क्वायर बाय 2 इट इज कमिंग फ्रॉम हियर ऑल्सो, तो हम सही मेथड से अपना रहे हैं तभी ये आंसर आ पा रहा है ना। दिस इज योर पावर्स वैल्यू। So I think this was all about your Fourier transform. Now from next lecture we'll deal with Laplace transform, how we are going from Fourier transform to Laplace transform, and what is the reason actually for going from Fourier transform to Laplace transform. We'll see in the next lecture, and we'll start Laplace as well as Z transform parallelly. So next module will have Laplace and Z transform. If you are having any doubt, you can join our Telegram group and you can discuss there. Whatever questions I'm giving you, you can post your solution there. Any query can be sought out there only in Telegram group. You can join. The link will be there in the description box. If you have liked till now, this is I think 31st lecture today, and if you have liked this all video, then please comment on in comment box so that we can get a feedback of it, and hit the like button, share it to the needy students, and subscribe the channel if you have not subscribed. Till then, tata, bye bye, see you, have a good day, Jai Hind.